afternoon, students. In previous lecture, we discussed about the Thomson's model of an atom, right? Which is resembles watermelon, right? Where the atom is positive sphere and electrons are embedded in that, right? क्या कहना था थॉमसन का कि एटम कैसा है? एक पॉजिटिव स्फीयर है, like this, positive sphere. And electrons are embedded inside like the seeds of the watermelon. Okay, ये हमने डिस्कस किया. तो according to Thomson, एटम का नेट चार्ज जो है वो क्या है? जीरो है. नेट चार्ज इज जीरो. व्हाई नेट चार्ज इज जीरो? बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ protons and electrons. Equal number of protons and electrons. Okay, but अगर बाहर से देखा जाए तो एटम कैसा है? पॉजिटिव स्फीयर है. बाहर से कैसा है? पॉजिटिव स्फीयर है. मतलब अगर इस एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चीज अगर हम बम्बार्ड करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए? रिपेल होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? रिपेल होनी चाहिए. मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, उससे वो दूर होनी चाहिए, रिपेल हो जानी चाहिए. सो उसके लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के foil लिया. Yesterday we discussed that why he selected gold foil. Because gold is highly malleable metal, right? Which can be drawn into thinnest sheet of it. And why he used alpha particle for his experiment? Because he wanted such a particles which have the high penetration power. Okay, high penetration power. And the right now we will see exactly what he did in his experiment. Children, are you able to see this video? Are you able to see this video? Right? See, children, at the very first, J.J. Thomson, who discovered the electron, right? That we know. And he also proposed the Thomson's model of an atom, which resembles the watermelon. Okay. And once again, I'm going to play it so you can see the structure of the Thomson's model of an atom once again in the video. See, children, in the Thomson's model of an atom, here you can see that positive particles are there in the sphere, while negative particles like electrons are also there. Okay, so atom is positive sphere and electrons are embedded inside, right?
See children. So when the Thomson proposed his atomic model, therefore thought that if the atom is the positive sphere and if I bombard a positive particle on it, then what are the expected result? The very first, the alpha particle should rebounds. Okay, the alpha particle should rebounds. बट जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कुछ अलग ही ऑब्जर्वेशंस देखे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली अब आप इस वीडियो में देखो क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको समझ में आएगा। देखो स्क्रीन में क्या दिखाया है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि एक रिंग है, ओके, एक ग्रीन कलर का रिंग है। वो ग्रीन कलर का रिंग मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो फ्लूरोस करेगा, ठीक है। जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड होंगे तो ये क्या करेगा? फ्लूरोस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो उसने यूज किया होगा जैसे कि जिंक सल्फाइड का प्लेट, है ना। जिंक सल्फाइड क्या करता है? हमने देखा है कि ये फ्लूरोस करता है। when the tiny particles get bombarded on that fluoros. Okay, now look at the screen. See children, what is there inside the circle, that green circle? There you can see one golden color of the plate. Okay, that golden color of the plate is nothing but the thinnest gold foil. Okay, क्या है वो? येलो कलर का प्लेट क्या है? गोल्ड की एकदम थीन फॉइल है, ओके। और उसी के बिल्कुल फ्रंट में आप देख सकते हैं कि वहां पर ग्रे कलर का कुछ तो भी एक पतला सा शीट है, राइट। ये क्या है? ये पतला सा शीट इसलिए है ताकि बराबर उसके अंदर सेंटर में जो होल बना है उस होल से अल्फा पार्टिकल्स एंटर होंगे, ठीक है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करने के लिए जो गन रखी है वो हमने बहुत दूर डिस्टेंस पे रखी है। आपको एक स्क्वायर कलर का स्क्वायर शेप का बॉक्स दिख रहा है ग्रे कलर का, वो क्या है? वो पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन है जहां से हम अल्फा पार्टिकल्स को शूट आउट करने वाले हैं, बम्बार्ड करने वाले हैं। तो ये पार्टिकल्स स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही टाइनी है। तो हमको एक नैरो ओपनिंग चाहिए, बराबर उस नैरो ओपनिंग से ये अल्फा पार्टिकल्स आगे पास हो सके। इसलिए हमने बीच में एक शीट बनाया, उसको बीच में एक होल किया जिसके थ्रू ये अल्फा पार्टिकल्स आगे पास हो सकते हैं। और ये जो आपको स्क्वायर शेप का बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर है हीलियम गैस। ध्यान दो, स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या है? जो एक दूर डिस्टेंस पे रखा हुआ है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है हीलियम गैस फिल किया है और वहां पर हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज सप्लाई करके हम वहां से अल्फा पार्टिकल्स को क्रिएट करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि हाउ अल्फा पार्टिकल्स आर क्रिएटेड। व्हेन द हीलियम एटम इज स्प्लिट आउट इट ब्रेक्स इनटू 2 इलेक्ट्रॉन and the nucleus, so that helium 2+ charge nucleus is known as alpha particles, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल अब देखो कैसे पास होते हैं आगे। अब देख सकते हैं स्मॉल होल से अब ये पार्टिकल्स बाहर आएंगे। You can see here, children, that the alpha particles are bombarding ओके स्टूडेंट। सो आपने देखा कि अल्फा पार्टिकल किस तरीके से बम्बार्ड हुए थे, ठीक है। वंस अगेन आई विल प्ले दिस वीडियो फॉर यू, राइट। सो आप देख सकते हैं कि जैसे अल्फा पार्टिकल पास हुआ है, आप इस फ्लोरोसेंट प्लेट को ऑब्जर्व करो जो सर्कुलर शेप में रखा हुआ है। यहाँ पर दो जगह पर आप देख सकते हैं कि फ्लोरोसेंट कर रही है स्क्रीन। एक तो गोल्ड फॉइल के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं
कि वहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रहा है और पार्टिकल जिस प्लेट से अंदर आते हैं उसके बिल्कुल राइट साइड में आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर ग्रीन कलर का जो जिंक सल्फाइड का प्लेट है वो एक और जगह पर ग्लो कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए, आगे चले गए। मैं थोड़ा बैक करूंगी, आप इसको एक बार वापस ऑब्जर्व करो। यहाँ से देखो, ये आप देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल यहाँ वहां मतलब ऐसे बम्बार्ड हो रहे हैं उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर। ठीक है, और वहां पर जो होल बना है उससे कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ रहे विथ वेरी हाई स्पीड, विथ वेरी हाई पेनेट्रेशन पावर। आगे देखो, यहाँ देखो क्या लिखा है, लीड शीट। ये जो हमने यहाँ पे शीट बनाया है ये किस मेटल का है, लीड मेटल का ये शीट है। ठीक है, ये लीड मेटल की शीट में हमने एक स्मॉल होल किया है और उस होल के अंदर से ये अल्फा पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे हमने उसको अलग किया है कि हाँ, होल के थ्रू ही अल्फा पार्टिकल्स को अंदर जाना है। ठीक है, सो इस होल के थ्रू ही अल्फा पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं। आगे देखो, look at the screen children, see, in this video you can clearly see once the alpha particle get bombarded on the gold foil kept inside the zinc sulfide circular plate. See, there is a thin sheet of the gold is kept, okay, and when the alpha particles were bombarded on the sheet, some of the particle rebounced. जहाँ पे एक मैंने पॉज करके आपको दिखाया है, यहाँ देखो, ये जो एक रे है ये गोल्ड फॉइल के ऊपर टकरा कर वापस क्या हो रहा है, रीबाउंस हो रहा है। और ये सीधा रिबाउंस नहीं हो रहा है, 180 डिग्री में ये रिबाउंस नहीं हो रहा है, बाय टेकिंग सम एंगल इट रिबाउंस। और जब ये रिबाउंस हो रहा है तो ये जिंक सल्फाइड के प्लेट पर बम्बार्ड हो रहा है। और जैसे जैसे ये बम्बार्ड होते जाएगा, ये जहां जहां पर बम्बार्ड होगा वहां वहां पर जिंक सल्फाइड का प्लेट ग्लो करेगा। आप एक बार वापस देखो, देखो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ओके, जो कि है ग्रीन कलर की, दैट इज द फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज कोटेड विद द जिंक सल्फाइड। ओके, सो जिंक सल्फाइड पे जैसे ही ये पार्टिकल्स बम्बार्ड होते हैं ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो करती है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लीड शीट के बिल्कुल बाजू में है ना एक ग्लो आपको दिख रहा है, जो पार्टिकल यहाँ पर बम्बार्ड हो चुका है ये उसका ग्लो है। और एक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने ग्लो कर रहा है, जो पार्टिकल गोल्ड फॉइल से आगे पास हो गया वो वहां पर जाकर टकराया और उसने उस फॉइल को ग्लो किया। आगे देखो, अब देखो ये स्क्रीन हमको क्या बताती है, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो एटम को आपको अज्यूम करना है कि वो एक एटम है, और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में वो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। अब ध्यान दो मैं क्या बता रही हूँ अच्छे से। लुक एट द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, there you can see the alpha particles are passing the lead sheet and enters into the fluorescent screen, okay, and the gold foil is kept in between. So some of the alpha particles were passed straight through the gold foil. कुछ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से आर पार चले गए। आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल, आप एक रे देख सकते हैं कि गोल्ड फॉइल से आगे पास हो चुका है और जाके जिंक सल्फाइड का जो कोटेड फ्लोरोसेंट प्लेट है उसके ऊपर जाके बम्बार्ड हो रहा है और वहां पे आपको ग्लो दिख रहा है। उसके बिल्कुल बाजू में देखो एक जो रे है वो गोल्ड फॉइल से डिफ्लेक्ट होके आगे जा रहा है। ठीक है, गोल्ड फॉइल से डिफ्लेक्ट होके आगे जा रहा है। नाउ लुक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देखो, जहां पर ब्लू कलर का एक सर्कल आपको दिखाया है, उस सर्कल से भी हम ये देख सकते हैं कि दो रेज जा रहे हैं। So that blue circle resembles the structure of the atom. ये atom का structure बताया है। And look at the central green color.
वो सेंटर वाला जो ग्रीन है वो क्या है, न्यूक्लियस है उस एटम का। ओके, सो सम ऑफ द रेज वेर स्ट्रेट passed through the atom and bombarded on the जिंक सल्फाइड प्लेट। कुछ रे ऐसे थे कि जो एटम से आर पार चले गए। अब गोल्ड फॉइल से गए मतलब ही वो एटम से आर पार चले गए। आगे देखो, look at the right side once again where the atomic structure is shown children, not experiment। ये ब्लू वाला सर्कल आपको देखना है। देखो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से गुजरे हैं, जो आपको रेड लाइन से दिख रहा है। एक रे आ रहा है जो बिल्कुल सेंटर वाला जो ग्रीन पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उसके ऊपर वो बम्बार्ड होकर कुछ एंगल से आगे पास हो रहा है। अब कुछ एंगल से क्यों पास हो रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसे है, पॉजिटिव पार्टिकल से। और न्यूक्लियस भी कैसे होता है जो हमको पता है अभी, पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं सारे के सारे प्रोटॉन्स। ओके, सारे के सारे प्रोटॉन्स का होते हैं न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, राइट। तो ये अल्फा पार्टिकल्स भी जो पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस के पास आते ही क्या हो गए, रिपेल हो गए, उससे दूर भाग गए। और अगर वो रिपेल हुए तो वो कुछ एंगल से आगे पास हुए। सो ये इस रे में आपको बताया है। आगे देखो, आगे देखो, और कुछ डार्क कलर से उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कुछ रेड कलर के रेज दिख रहे हैं, ठीक है। और ये रेज ऐसे है कि ये रीबाउंस हो रहे हैं, ना ही ये एटम से आर पार गए, ना ही ये कुछ एंगल के आर पार गए, बल्कि ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से बम्बार्ड हुए, और बम्बार्ड होते ही ये रीबाउंस हुए। जिस डायरेक्शन से वो आए थे अल्फा पार्टिकल, उसी डायरेक्शन से वो रीबाउंस हुए हैं। ये हमको ये रेड कलर के एरोज बता रहे हैं। आगे देखो, अब देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि सम ऑफ द रेज वेर पास थ्रू द एटम, some of the rays were passed through the atom by taking some angle, and some of the rays were rebounced from the gold foil। तो इससे एक एटम का स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने डिफाइन किया कि most of the space inside an atom is empty। most of the space atom के अंदर का कैसा है, empty है, and the positive charges are accumulated in the center। इससे क्या कंक्लूड किया कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं एक जगह पर एटम के एक्यूमुलेटेड है, और बराबर उस जगह पर जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड होता है तो वो रीबाउंस हो रहा है। बाकी का स्पेस जो है एटम में वो कैसा है, एम्प्टी है, और इस एम्प्टी स्पेस से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे पास हो रहे हैं। आगे देखो, there you can see the positively charged center or nucleus, and the electrons are, see how they are revolving around the nucleus. They revolve in the well-defined orbit. Okay, children, and see the size of the nucleus is very small. Okay, children. So have you observed that video? Just tell me fast. Have you observed the video of Rutherford experiment? Right. Now look at the screen carefully. देखो क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट में। ओके वेट, ऑलराइट। सो देखो एक्सपेरिमेंट में क्या था,
एक्सपेरिमेंट में इस तरीके का जिंक गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, और यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल्स को पास कर रहे थे। तो क्या हुआ, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड बम्बार्डेड ओवर द जिंक सल्फाइड प्लेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्लो हुआ, जैसे ये बम्बार्ड हुआ यहाँ पर क्या हुआ, ग्लो हुआ। सम ऑफ द रेज वेर passed by taking some angle, like some of the rays were passed through but by taking some angle. Okay, now children, see this. Once the particle were bombarded on the screen, then the screen started glowing. Okay, then the screen started glowing because this is a fluorescent screen, and once it come in a contact with the particles, once the particle get bombarded over it, it started glowing. Right children? Now look at this. अब ये जो एक रे में आपको ड्रॉ करने जा रही हूँ, यहाँ पर आप देखो स्क्रीन पर रेड कलर का एक रे में ड्रॉ करूंगी, ठीक है। अब समझो ये रे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होके आगे आर पार हुआ, तो बराबर ये वाले पार्ट पर क्या होगा, ग्लो होगा। ओके, अब कुछ रे ऐसे थे कि जो गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड हुए बट वो आगे पास नहीं हुए, वो रीबाउंस हुए, इस तरीके से रीबाउंस हुए, ठीक है। और ये रीबाउंस क्यों हुए, क्योंकि उस गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स है, गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स है, ये बराबर उस न्यूक्लियस के ऊपर टकराए थे। जो रेज ऐसे रीबाउंस हुए वो बराबर उस न्यूक्लियस के ऊपर टकराए थे, इसीलिए वो रीबाउंस हुए, इसीलिए वो क्या हुए, रीबाउंस हुए। जो रेज न्यूक्लियस के बाजू में से गुजरे, बिल्कुल ऐसे, ये एटम और ये उसका न्यूक्लियस, कुछ रेज ऐसे थे जो एटम के पास आए बट न्यूक्लियस के बिल्कुल बाजू में से गुजरे, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास आए वहां पर क्या हुआ, रिपल्शन। The alpha particles are positive charge, okay, and the nucleus is also positive charge, so they repelled, and as they repelled, they passed through the gold foil by taking some angle. Some of the rays were deflected back by taking some angle, okay, और जो बिल्कुल न्यूक्लियस के दूर से गुजरे, ऐसे समझो ये एटम, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के दूर से गुजर रहे हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पर सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, आजू बाजू में क्या है, सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, और पॉजिटिव तो बिल्कुल सेंटर में है। तो ये कुछ रेस जो थे वो गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए, जो इलेक्ट्रॉन के पास में से गुजरे वो आर पार चले गए। तो देखो बच्चों, थॉमसन ने बताया था कि एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या थे रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के, कि कोई भी रे आगे पास नहीं होना चाहिए, कोई भी रे आगे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटम ही पूरा का पूरा कैसा है, पॉजिटिव है, तो सारे के सारे रेस क्या होने चाहिए थे, रीबाउंस। और आगे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने रखा था वो ग्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं, कुछ रेस पास हो गए और पास होने के बाद फ्लोरोसेंट स्क्रीन उनको ग्लो होते हुए दिखा, ऐसे ग्लो होते हुए दिखा। मतलब ही थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो रॉन्ग है कि एटम इज नॉट ए पॉजिटिव स्फीयर। तो थॉमसन का जो पोस्टुलेट था कि एटम इज पॉजिटिव स्फीयर and electrons are embedded inside, so that statement is completely wrong, that statement is completely wrong children, okay. But then too, if the question is asked in your examination, that is write the Thomson's model of an atom, then you are expected to write those postulates, okay student, you are expected to write the same postulates, even the postulates are wrong. See this. Now this postulate, atom is a positive charge sphere. This statement has been proved wrong by the Rutherford because most of the space inside an atom is empty according to Rutherford, and the gold foil and bombarded over the zinc sulfide fluorescent screen. Okay, आगे देखो,
diagram of the Rutherford experiment. See children, this is the gold foil and the atoms are shown with a circle inside. Okay, and you can also see the dots inside the circle like this. The atom is there and one dot is there. So what that dot is? Nucleus. Okay, और ये पूरा आपको assume करना है कि ये gold foil है. तो जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल पास हुए तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस से दूर से गुजरे, न्यूक्लियस से जो दूर से गुजरे वो आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए, आगे पास हो गए. ठीक है. Some of the rays were rebounds. Some of the rays were rebounds. Look at this structure. Some of the rays were rebounds. जो बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड हुए वो 180 डिग्री में क्या हुए, वापस रीबाउंस हुए. और जो न्यूक्लियस के पास में से गुजरे, लुक एट दिस एरो, लुक एट दिस वन, जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे वो रिपेल हो गए, बट हाई पेनिट्रेशन पावर थी इसलिए वो आगे चले गए. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द रदरफोर्ड. ओके, अब हम ये ऑब्जर्वेशंस देखेंगे. सी द फर्स्ट पॉइंट. Most of the fast moving alpha particles pass straight through the gold foil is the first observation made by the Rutherford. Okay, most of the alpha particles were passed through the gold foil. Second postulate, some of the alpha particles were deflected by the foil by small angle. कुछ ऐसे थे जो न्यूक्लियस के पास में से गुजरे वो रिपेल होके कुछ एंगल से आगे पास हो गए. राइट चिल्ड्रन. नाउ सम ऑफ द रेज. ओके, वेट. नाउ चिल्ड्रन, सम ऑफ द रेज which were directly bounced over the nucleus, okay, they were rebounced by taking angle of 180 degree directly. Some of the rays were rebounced. Okay, see this third one. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि वो रीबाउंस हुआ. अब देखो ये रेशो बहुत ही ज्यादा बड़ा है कि 12,000 में से एक, मतलब बहुत ही कम रीबाउंस हुए, बहुत ही कम रीबाउंस हुए. इसका मतलब क्या है कि एटम में ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्मॉल एरिया में ऑक्युपाइड है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हुए, पास हो गए. मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास हो गए, मोस्ट ऑफ द, एंड ओनली 1 आउट ऑफ 12,000 क्या हुआ, रीबाउंस हुआ. मतलब द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑक्युपाइज वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम. और बस उतने ही पोर्शन पे जब ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड हो रहे थे तो वो रीबाउंस हो रहे थे. So only 1 out of 12,000 particles, only 1 out of 12,000 rebounced. Okay, rebounced. So these are the 3 observations made by Rutherford. Okay, अब इसके conclusions देखो. इसकी conclusion क्या है? The very first conclusion, space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. Most of the space जो है ना एटम के अंदर का वो कैसा है, एम्प्टी है. मतलब वहां पे क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स है. क्या है वहां पे, अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुजरे तो वो आगे पास हो गए. most of the particles आगे क्या हो गए, most of the space inside an atom is empty. Okay, next. Very few particles were deflected from their path. ऐसे की particles थे जो deflect हुए, ऐसे 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 deflect हुए, बहुत ही कम. Okay, indicate that the positive charge of the atom occupies very little space. Positive particle जो है जिसके ऊपर
अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड होके क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये बहुत ही कम स्पेस है, very little space inside the atom is occupied by the nucleus. Okay, and the third one, a very small fraction of alpha particles deflected by 180 degree. बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे गए और ऐसे वापस आए, ठीक है, ऐसे गए और ऐसे बाउंस हुए. What it shows? All the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. So nucleus of the atom occupies very small space inside the atom. Okay, student. Now remaining part, the Rutherford's model of an atom, their postulates and the drawbacks of the Rutherford experiment we will discuss in the next date. Okay, student. So today we discuss about the Rutherford experiment, observations, and the conclusion of the. We will discuss about the remaining part. Did you understood Rutherford experiment, children? Did you understood Rutherford experiment? Come on, play fast. Is the Rutherford experiment clear? Any doubt, children, in this? ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी, आप उसको ऑडियो अनम्यूट कर सकते हो आप अगर कोई डाउट तो. I will send this video. Yes, I will send this video in our WhatsApp group. You watch this video along with the audio also. इसमें ऑडियो भी है बट वो ये इसमें यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है ऑडियो, सिर्फ एक्सपेरिमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड write down the observations and conclusion and draw the diagram for the Rutherford experiment. This is your today's homework. Okay, write these 3 points and this 3 and draw the diagram. Okay, children.